ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड गेट इट। तो वंदे मातरम बच्चों। तो आज हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन की। तो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ आवर क्लास? हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट हियर। ppm, parts per million. So this unit is very important to report it the atmosphere pollution. So how to report it the atmosphere pollution in ppm, parts per million. So what is the next topic? Write down the ppm, parts per million. What is the full meaning? Parts per million. So parts per million, this is used for the report of the atmosphere. So parts per million. So how to calculate? ppm equal to part of that component, part of the component, जिस component का हमें calculate करना है उसी का part ऊपर लेंगे, the part of the component and total parts of all components in the solution. So clear? And multiply with 10 to power 6. Okay. So ppm, this unit is very important for pollution reported pollution in atmosphere. So ppm is clear. The pollution of the atmosphere reported in the ppm. Next is mole fraction. So next topic is mole fraction. What is mole fraction? Next topic, this is the mole fraction. Let's see. This is the ratio. It is defined as the, what is the definition? It is defined, कैसे define करेंगे? ये एक ratio है किसका? It is defined as the ratio of one component in term of moles and total moles of all components in the solution. Clear? What is the definition of the mole fraction? The mole fraction, it is defined as the ratio of mole of one component and divided by the total mole of all component in the solution. So how to express the formula? Let's see. Mole fraction is denoted in x. So what is the representation? Let's see. तो कैसे represent करेंगे? So let's see how to represent the moles fraction. X. Okay, it is denoted by x. Suppose हमारे पास solute है और दूसरा है बेटा solvent. Okay. If solute is B and solvent is A, तो this is called the binary solution. इसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी. अगर दो कंपोनेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन. 3 कंपोनेंट टर्नरी, तो बाइनरी एक्स ए. तो मोल फ्रैक्शन ये हो गया एक्स ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है आपका ए एंड मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. क्लियर? हाउ टू एक्सप्रेस द एक्स बी? xb equal to nb upon divided na plus nb.
तो हाउ टू राइट mole of the component, mole of the component, that component, and total moles of the all components in the solution. So clear? It's clear how to learn moles of the component and total moles of all component in the solution. And next is very important, always XA plus XB plus XC so on is always equal to 1. This is very important question. Total mole fraction of binary solution is 1. Total mole fraction of ternary solution is always 1. In any condition, the total of mole fraction is always 1. So clear? Now let's see. Mole fraction is a unitless. Mole and mole से mole cancel हो जाएगा. तो next point, write down the next point. Mole fraction is a unitless and it does not depend on the temperature. So write down the next point. Mole fraction is unitless. Unitless means without unit. Mole fraction की कोई unit नहीं होती, and it does not depends on temperature, और ये temperature पर depend नहीं करता. तो clear what is the mole fraction? Now its next topic is molarity. So how to express the concentration molarity? To write down the next unit, next topic, molarity. Molarity and denoted by capital M. So it is defined as the moles of solute. How to learn? Moles of solute dissolve in 1 liter solution. So volume of solution is in 1 liter. Clear? So 1 liter solution. So volume of solution is 1 liter. If you write here ml, तो multiply with 1000. अगर आप यहाँ ml लिखोगे तो आपको यहाँ 1000 से multiply करना पड़ेगा. तो moles of solute divided by volume of solution in liter. इसे आपको याद रखना है. Volume of solution in 1 liter always. तो 1 molar solution means moles of solute dissolve in volume of 1 liter solution. तो हाउ टू कैलकुलेट द मोल. अब हमें मोल कैसे कैलकुलेट करना है. देखो बेटा, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे. मोल्स डिनोटेड बाय एन एंड W upon n. W means weight and mass. Weight of द कंपोनेंट. जिस कंपोनेंट के आपको मोल निकालना है उसका वेट हो जाएगा कंपोनेंट एंड डिवाइडेड बाय द मोलर मास. अब सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि वाटर के 1 मोल लेके आओ, तो यू कैन कैलकुलेट एटम्स एंड मॉलिक्यूल. नो, वाटर को हम कैलकुलेट काउंट नहीं कर सकते. तो हम क्या कहेंगे, इसका जो मोलर मास है वही 1 मोल है. 1 मोल का मतलब होता है मोलर मास. H2O का मोलर मास क्या होगा बेटा, 16 प्लस 2 18. तो इट मीन्स आप 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल इक्वल टू 6.023 10 to power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल्स. सपोज अमोनिया इज गैस, तो हम अमोनिया गैस के मोल, एटम, मॉलिक्यूल कैसे काउंट करेंगे. तो अमोनिया मीन्स आपको कितना वेट लेना पड़ेगा, 17 ग्राम. 14 प्लस 3 17 ग्राम इज इक्वल टू
1 mole and 1 mole equal to this. Clear? So Avogadro number is called this is called the Avogadro number. So let's 4 gram NaOH dissolve in 500 ml water. Calculate its molarity. 4 ग्राम NaOH को हमने किस में डिजोल्व किया? 500 ml वाटर में. तो अब आप उसकी मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? लेट्स सी दिस एग्जांपल वी विल डिस्कस. तो व्हाट इज द एग्जांपल बेटा, कैसे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोल्स निकालना है. सॉल्यूट आपका क्या है? सॉलिड कौन सा होता है? जो लेस अमाउंट में है. जो हायर अमाउंट में है वो आपका क्या है? हमेशा सॉल्वेंट होगा. तो लेट्स सी सॉल्यूट है हमारा 4 ग्राम NaOH. अब 4 ग्राम NaOH को के मोल्स निकालो, कैलकुलेट करो. कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है. सोडियम OH का मोलर मास कितना होगा? 23 + 16 + 1 इक्वल टू 40. 4 ग्राम आपको वेट दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 4/40 1/10. 1/10 equal to 0.1 mole. So you have to write 0.1 mole. Clear? तो now it means 0.1 mole. अब आपका डेफिनेशन क्या है? मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉलिड हो गया 0.1. डिजोल्व इन 1 लीटर बट 500 ml इज गिवन. 500 को हमें लीटर में चेंज करना है. तो अब आप कैलकुलेट करें. 0 1 2 3 1 2 3 1/5. 1/5 means 0.25 m molarity. तो what is the molarity of 4 gram NaOH in 500 ml? 0.25 m. Clear? How to calculate the molarity? Moles of solute dissolve in 1 liter solution. सॉल्यूट के मोल्स को अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दें तो उसको हम कहते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोलेलिटी. मोलेलिटी एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलेलिटी? मोल्स पर लीटर. इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन. मोलेलिटी, द यूनिट ऑफ मोलेलिटी इज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलेलिटी? इज मोल per liter. This is the unit. It depend on temperature. Temperature, because why molarity depend on temperature? What is the answer? क्या लिखना है आपको आंसर? Because molarity depend on volume. वॉल्यूम पर मोलरिटी क्या होती है आपकी? डिपेंड करती है. वॉल्यूम में भी एक्सपैंड, में भी कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो लेट्स सी. नेक्स्ट इज मोलेलिटी. So next topic is molality. So how to calculate the molality? Molality means mole. Again you have to take mole. दोबारा हमें मोल ही लेना है, बट आपको याद रखना है मोलेलिटी में हमें सॉल्वेंट लिखना होता है और मोलेरिटी में सॉल्यूशन. तो नेक्स्ट इज मोलेलिटी. तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. मोलेलिटी डिनोटेड बाय M. जनरली स्टूडेंट मोलेरिटी एंड मोलेलिटी में कंफ्यूज होते हैं. अगर आप दोनों याद नहीं कर सकते तो आप एक याद कर लें, जिससे आपको दूसरे में याद रहे. तो मोलेलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं. रनिंग में आप अगर मोलेरिटी को m को स्मॉल m में लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा मोलेरिटी को स्मॉल m से लिखें. तो हाउ टू डिफाइन? इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 किलोग्राम सॉल्वेंट. तो फॉर्मूला बनाओ बेटा. कैसे बनाओगे? m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब आपको क्या करना है? सॉल्यूट के मोल्स लेने हैं. सेम प्रोसेस है बेटा. मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट. अब वॉल्यूम नहीं लिखना, ये इस पर अंडरलाइन कर लो. मास ऑफ सॉल्वेंट. डोंट राइट द मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम केजी. अगर आपने सॉल्यूशन इन लीटर लिखा है तो वो आपकी मोलेरिटी होगी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखा है तो वो क्या है बेटा? मोलेलिटी. क्लियर?
तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम इज कॉल्ड द मोलेलिटी. उसी को हम क्या कहते हैं? मोलेलिटी. ओके. सपोज 7 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 7 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड dissolve in 98 ग्राम वाटर. यू कैन सी वाटर ग्राम में दिया हुआ है इसलिए ये सॉल्वेंट है. 98 ग्राम वाटर. कैलकुलेट इट्स मोलेलिटी. अब आपको इसकी मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है. हाउ टू कैलकुलेट द मोलेलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मोलर मास. What is the molar mass of this? 2 + 1. सल्फर का बेटा कितना होगा? 32. ऑक्सीजन का 16 × 4 कितना हो गया? 2, 32 and 64. तो 98 इज इट्स मोलर मास. अब आप देखिए 7 ग्राम H2SO4 dissolve in 98 ग्राम वाटर. लेट्स सी. तो व्हाट इज द मोल्स? मोल्स कितना होगा? 7 डिवाइडेड बाई 98. क्लियर? आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरी भी नहीं है. अब हमें निकालनी है मोलेलिटी. मोलेलिटी क्या होगी? ये तो हो गया आपके मोल्स डिवाइडेड बाई 98. अब आपने सॉल्वेंट कितना लिया है? सॉल्वेंट भी हमने क्या लिया बेटा? 98. वो ग्राम में है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो नाउ कैलकुलेट इट. ओके. 7 1 × 7 1500. आप इसे कट करके देख लें, आंसर कैलकुलेट कर लें. 7 to simplify 250 divided by 7 into 49 and this is the molality. Clear? So how to calculate the molality? So molality means moles of solute dissolved in 1 किलोग्राम solvent. अगर आप सॉल्यूट को सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास सॉल्वेंट आ जाएगा. सपोज आपको क्वेश्चन में सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन. So it's clear all of you. Now have a nice day. Thank you. Best of luck.